Mr. Vikas, you want to say something? Good evening, Khushal ji. Good evening, sir. How are you? I'm fine. Good to see you. Yeah. So we'll start now because we are given 5 minutes. Now we can just, I will like to introduce myself. मेरा नाम कुशल गोयल है और मैं यहाँ रीजनल मैनेजर हूँ एमआरओ 2 में. इसके पहले आई हैव जॉइन न्यू इंडिया इन 1994 in the capacity of typist, and in 2000 I got promotion as the administrative of in charge, डबल एओ जो बोलते थे पहले, assistant administrative officer. So all along till 2020 I was in MRO 3 and head office, or I was lucky to work in branch office, divisional office, regional office, head office, and I was basically placed mostly in MRO 3, where I was not in a contact with any development officer or any agents. So, in coming to MRO 2 and getting this job as a RM, I'm now able to connect with our agent fraternity, and I'm very happy. I have come to know so many people who is actually a ground force of our New India, who is bringing a lot of business to New India, who is the pioneer, or we what you can say foot soldiers of New India, who because of them, because of you all, New India is thriving, New India is succeeding in every aspect. So thanks to all of you. I'm very happy that by this post I'm able to connect with so many good people, so many people who is working for themselves, our company, and the good of lot of people. Here, see, when I discuss, I've seen a lot of people are asking, discussing about. One more thing I wanted to say, I was working in MRO 3. So, mostly my work experience involved in accounts, and 6 to 7 years I was in miscellaneous technical. So, because of the 6 to 7 years in miscellaneous technical MRO 2, MRO 3, I have some little bit knowledge about miscellaneous department. So, over the experience, I wanted to share few informations which I feel key if lot of people know. So, to sell the insurance or to understand how insurance company works will be very easy to understand and explain to customers also, and also it will be very easy to understand at your end why insurance company is acting like this or insurance company is doing like this. So a personal accident is a app product which will help me to explain you what we are doing at the back end for any insurance policy, regarding sum insured calculation, regarding premium calculation, regarding deciding the terms and conditions of the policy. So basically, this particular lecture is not completely about PA policies. It is generally about how our insurance works, and with the example of personal accident policy, I would like to explain you both the things, like how insurance works and how PA policies, terms and conditions, sum insures, and premium is working. So let's start. Now I think we should not wait for others. We can start with the subject. So I basically I've given my introductions. Now I am just talking about insurance and PA. So insurance is nothing but collecting a small amount from lot of people and paying to the person who is unfortunate and he has suffered a loss. तो क्या करना चाहिए, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना क्लेम देना है, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की. तो मैं इस केस को हम लोग पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं. तो ये हम लोग 200 साल पुराना, 300 साल पुराने इन एरिया में चलते हैं. इससे वी आर in the middle of industrial revolution, where lot of industries, lot of factories has been established. Now the source of income is not only from business. This source of income is working in that field, working in that factory, working in that particular foundry, working in with that big industries. Our workers is getting some remunerations. तो उसके ऊपर से उनका घर चल रहा है. तो ऐसा एक केस हो गया कि सी आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज ए पर्टिकुलर वर्कर. तो मैंने देखा कि मेरी फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 400-500 लोग काम कर रहे हैं, और उसमें वहां पे
अनफॉर्चुनेटली वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया। एक एक्सीडेंट हो गया और वहां पे एक आदमी एक्सपायर हो गया। ना वो एक्सपायर हो गया तो मैंने देखा कि यार वो तो बेचारा गरीब था, जो भी पैसा कमाता था वो सिंगल अर्निंग, वी आर टॉकिंग अबाउट 200 ईयर्स अर्लियर, जब 1800 में जब अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। तो तब क्या था इंश्योरेंस का स्टोरी, इंश्योरेंस वाज गिवन ओनली फॉर मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। वहां पे दूसरा कोई तब तक कंसेप्ट नहीं था। तो जब मैंने देखा कि उस आदमी का एक्सीडेंटली उसका हाथ चला गया, पैर चला गया, और वो फैक्ट्री में एक्सीडेंट होने से वो मर गया। जब वो तो मेरा दोस्त था, मैं उसके घर पे जाके देखा तो अरे उसके घर पे वो सिंगल अर्निंग पर्सन था, उसके 4 बच्चे है, उसकी बीवी है, रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, अभी रास्ते पे आने की कंडीशन हो गई। तो ये सोच के मुझे बहुत बुरा लगा। हम लोग ने कंट्रीब्यूशन करके थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट किया, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में आई कैन नॉट, मेरा खुद का इनकम इतना कम है कि मैं उसको कितना सपोर्ट कर सकूंगा। आज तो ये एक केस हुआ, कल और 4 केसेस हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो ये सब चीज सोचते सोचते मैं सोचता हूँ कि मैं दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में क्या, अगर ये एक्सीडेंट मेरे साथ होता तो मैं क्या करता। तो तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे तो पैसे जमा करके रखने पड़ेंगे मेरी फैमिली का ध्यान रखने के लिए। तो मैं जब एलआईसी के पास गया कि भाई मुझे पॉलिसी दे दो, तो एलआईसी का जो इतना प्रीमियम था और जितना मेरा इनकम था उसके हिसाब से तो मैं सिर्फ, मेरा सारा पैसा एलआईसी में चला जाएगा, मेरे को कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं जाता हूँ मेरे एक फ्रेंड के पास जो इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और उसको मैं बोलता हूँ यार तुम लोग तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस करते हो, तो क्यों ना मेरा भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस करो, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो बोलते हैं, भाई हमारे पास ऐसा कोई कवरेज नहीं है, आप जाओ, हम लोग देखेंगे, हम लोगों को कुछ कवर नहीं है। और तेरे को मैं अगर 1 लाख का सम इंश्योर्ड तेरे को चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तभी हम लोग 1 लाख का ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि अब मैं इससे कम बोलेगी तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर मैं 1 लाख का सम इंश्योर्ड के बारे में बात किया तो बोलेगा मुझे तेरे 1 लाख रुपए तू अकेला मेरे पास आ गया है, कल को तेरे को कुछ होगा तो 1 लाख रुपए देने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैं उसको बोलता हूँ क्यों 1 लाख रुपए मेरे से अकेले से क्यों ले रहा है, मैं तेरे को और 10,000 लोग लेके आऊंगा और तू सबसे पैसा ले, थोड़ा थोड़ा पैसा। तो मेरे दोस्त को समझ में आए, वो तो इंश्योरेंस कंपनी में, उसको तो पता है कि मैं जितना आगे बढ़ूंगा अलग अलग मैं और इंश्योरेंस सेक्टर खोलूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा। तो बोला ठीक है, अगर तू ऐसा चाहता है कि मैं तेरा पॉलिसी करूँ तो मुझे मिनिमम आई वॉन्ट 1,000 पीपल। अगर तू 1,000 पीपल को लेके आएगा तो मैं तेरा इंश्योरेंस करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि क्या है, इंश्योरेंस कंपनी क्या सोच, उसने क्या सोचा, मेरे दोस्त ने सोचा कि अगर एक आदमी का मैं इंश्योरेंस निकालूंगा और उसको कुछ हो गया तो उसका जितना सम इंश्योरेंस मुझे पूरा देना पड़ेगा, तो उसने दिया ही 100 रुपये प्रीमियम और 1 लाख रुपए लेके जाएगा। लेकिन 1,000 आदमी लोग आएंगे, 1 लाख आदमी लोग आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख पर्सन आता है, और मैं सबसे 1-1 रुपया भी लूंगा और एक ही आदमी मरेगा तो भी मेरा लॉस कुछ नहीं होगा। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं अभी आज इस, ये मेरे को प्रॉमिस कर रहा है कि कुशल मेरे को प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे को 1 लाख आदमी ला के दूंगा और तू सबके लिए 1 लाख का इंश्योरेंस निकाल के दे। तो मैं, इंश्योरेंस कंपनी सोचेगी हाँ ये तो अच्छा प्रोपोजिशन है, अगर मैं उससे 1 लाख अगर आदमी लोग है अपने पूरे एरिया में। હાઈ લેવલ પર નથી, બ્રાન્ચ લેવલ ઉપર જ છે મારી પાસે. जयश्री मैडम એટલે आपका પણ ઈ आवाज, હવે ક્લેમ જ સંભાળે છે ત્યાં આગળ जयश्री અંધેરીમાં. मैडम, जयश्री પેલા को અહીંયા सबको म्यूट कर दो सर. सर यू आर म्यूट. आप म्यूट हो गया. आप म्यूट हो गए सर. हाँ ठीक है, अभी आ रहा है आवाज, सबको म्यूट मत करो, डोंट Yes, म्यूट yes, एवरीबॉडी। we can see you and hear you now. या Yeah, yeah. एक्चुअली समवन इज टोल्ड कि सबको म्यूट कर दो, तो आई थिंक किसी ने सबको म्यूट कर दिया, डोंट डू म्यूट, मैं भी म्यूट हो जा रहा हूँ। तो अगर वो 1 लाख लोग मेरे पास लेके आएगा, इंश्योरेंस कंपनी सोचता है कि खुशहाल अगर मेरे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख लोग लेके आएंगे तो मेरे को तो अच्छा है। अगर मैं देखता हूँ कि इसमें 3 से 4, 1 लाख में से कैजुअलिटी कितनी होगी, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग मर सकते हैं। तो अगर 10 लोग मरेंगे और सबको 1-1 लाख देना तो मेरे को 10 लाख देना है। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो 10 लाख, 10 लोग नहीं, अगर मैं और एक्स्ट्रा पकड़ के चलता हूँ, 5 लोग और पकड़ के चलता हूँ, तो 15 लाख लोग मर सकते हैं। तो अगर 15 लाख लोग का, अगर मैं 1 लाख लोग मेरे पास आते हैं और सबसे मैं 15-15 लाख रुपए लूंगा तो मैं 15 लाख रुपए दे सकता हूँ।
तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रिपोजिशन अच्छा है। अगर मेरे को अगर बढ़ाना है कि मेरे को एक साथ में 15 लाख रुपए मिलेगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, सब करूंगा, तो मेरे को उससे भी प्रॉफिट मिल सकता है। और समझो गलती से 10 लाख, 10 लोग नहीं मरे, 10 से कम लोग मिले, तो मुझे और भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ठीक है। मैं कुछ मतलब मेरे को इंश्योरेंस कंपनी फोन करके बोलती कि ठीक है, अगर तू 1 लाख लोग लेके आएगा तो मैं तेरा प्रोविजंस पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में मैं सोचूंगा। नाउ यू सी, यू कंसिडर योर सेल्फ, ऑल द एजेंट, यू कंसिडर योर सेल्फ इंश्योरेंस कंपनी। नाउ मैं जो भी बोल रहा हूँ, आई एम इंश्योर्ड, आई एम प्रपोजिंग यू एंड यू आर इंश्योरेंस कंपनी। नाउ इट रोल इज रिवर्स, अंडरस्टैंड। तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को पूछा कि भाई तू 1 लाख लोग लेके आएगा और मेरे हिसाब से कम 15 लोग मरेंगे, तो मेरे को 15 लाख रुपए तो तुमको देने पड़ेंगे। तो मैं बोलेगा ठीक है, 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 1 लाख से तो 15-15 रुपए ले ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 लाख 15 रुपए में दूंगा और मुझे 1 लाख का कवर मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी, एवरीबडी विल पे। तो बोला ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अभी 1 लाख लोगों से मुझे अगर प्रीमियम लेना है तो मुझे हर जगह पे ब्रांच खोलनी पड़ेगी, हर जगह पे लोगों को कन्विंस करने के लिए मेरे को आदमी भेजने पड़ेंगे, तो उसका भी खर्चा आएगा। तो मेरे को उसके पीछे समझो 3 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो उसमें मैं ऐड कर दूं? तो बोला हाँ कर दो। मैं बोलूंगा ठीक है ना, 18 रुपए देने में मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं 18 रुपए के लिए भी रेडी हो गया। फिर वो बोला कि यार ये सब करने में अगर कुछ ज्यादा आगे पीछे हो गया, मेरा प्रॉफिट लॉस हो गई, तो मेरे को भी कुछ पैसा कमाना चाहिए ना। तो मैं पूछूंगा कितना कमाना है तेरे को? बोला 2 लाख रुपए एटलीस्ट हाथ में चाहिए मेरे को। कुछ भी हो सकता है, ज्यादा वो लोग मर सकते हैं, मेरा कमीशन ज्यादा हो जा सकता है, मेरे कुछ भी और भी रीजन हो सकता है। तो मैं बोला तो तेरा टोटल आउटगो कितना हो रहा है? तो बोला 20 लाख रुपए। तो मैं बोलूंगा तो फिर मेरे से कितना चार्ज करेगा? तो वो बोलेगा 20 रुपए। तो बोला ठीक है, 20 रुपए के पीछे मुझे 1 लाख का कवर मिल रहा है। नाउ इंश्योरेंस कंपनी इज ऑल्सो इंश्योरिंग दैट कि 20 मेरे पास 10 क्लेम आएंगे, 5 लाख रुपए का मेरा बाकी एक्सपेंसेस है, 5 लाख मेरा प्रॉफिट होगा, और इसको सिर्फ 20 रुपए में 1 लाख का कवर मिल रहा है। तो अभी ये बात हो गई, प्रीमियम फिक्स हो गया कि 20 रुपए 1 लाख रुपए के लिए मैं दूंगा। अभी मैं बोलता हूँ कि भाई मैं अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया तो मुझे 1 लाख रहेगा। लेकिन क्या होगा कि कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया लेकिन मैं मर नहीं गया, मेरा सिर्फ एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया, या मेरे आंखों में प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करेगा? तो बोले वो मालूम नहीं, वो मालूम नहीं। तो बोलता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, फिर कोई लेगा ही नहीं पॉलिसी। तो तू मुझे और भी बेनिफिट्स दे। मैं उसको बोला कि वो तुझे और भी बेनिफिट्स दे। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग डॉक्टर को बुलाते हैं। तो फिर उसने डॉक्टर को बुलाया, मैं भी गया और वो भी बैठा। तो हम लोग ने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर को पूछा कि भाई तू बता कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बोला कि देखो मैं डॉक्टर बोल के मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फैक्ट्री ओनर को ही बुलाओ। तो मैंने मेरे फैक्ट्री ओनर को ही बुलाया। तो डॉक्टर ने उसको पूछा, फैक्ट्री ओनर को, कि अगर किसी आदमी को एक्सीडेंट होता है और उसका अगर दोनों हाथ या दोनों पैर कट जाता है तो उसको काम पे रखेगा क्या? तो फैक्ट्री ओनर बोला नहीं रखूंगा। तो बोला ठीक है, इस केस में अगर एक आदमी का दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंख, या एक हाथ एक पैर एक आंख, कुल मिला के जैसे 2 लिम्स अगर चले जाते हैं, तो उसको हम लोग समझ सकते हैं एज इक्वल टू डेथ, वो मर गया ऐसे समझने का। तो अगर उसको तभी ऐसा कोई सिचुएशन है तो उसको 1 लाख रुपया उसमें देने का। फिर उसको पूछा कि अगर एक ही हाथ चला गया या एक ही आंख चली गई या एक ही पैर चला गया तो क्या करने का? तो बोला ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा रख सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि मेरा इंडस्ट्री कैसा है। अगर उसका आंख की जरूरत है तो मैं उसको नहीं रख सकता, लेकिन उसको मैं दूसरी कंपनी में जॉब लगा सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा तो दूसरी कंपनी में लगा सकता है, लेकिन मेरे को तो नुकसान हो गया ना। आज मेरे को इधर 10,000 का काम मिलता है, वहां पे मुझे 5,000 का मिलेगा, क्योंकि मेरा हालत ऐसा नहीं है कि मैं पूरा काम कंप्लीटली करूँ। तो बोला कि ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तेरा 50%, अगर तेरा 1 लाख समय छोड़ा है तो तेरे को 50% मिलेगा। अगर तेरा एक हाथ एक लिम या हाथ या मेरे आंख कुछ हो गया तो तेरे को 50% मिलेगा। नाउ सी व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर डिस्कसिंग व्हाट आर द बेनिफिट्स कैन बी गिवन इन द केस एक्सीडेंट हैपन। तो मैं एक डॉक्टर को लेके, वो एक डॉक्टर को लेके आया, मैं अपना फैक्ट्री ओनर को लेके आया। हम लोग देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है तो क्या हो सकता है। तो डॉक्टर एक बात और भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया ना तो तुम्हारा ना हाथ कटा ना पैर कटा ना तुम मरे, लेकिन तुम्हारे को ऐसे प्रॉब्लम हो गई, यू बिकम पैरालिसिस।
तो फिर उसको पूछा फैक्ट्री ओनर को, अगर पैरालिसिस होगा तो तू क्या करेगा? बोले अरे भाई पैरालिसिस को मैं कहाँ से रखूंगा, उसको तो मैं हटा ही दूंगा। तो फिर बोला कि ये भी इक्विवेलेंट टू दैट, तो अगर उसको पैरालिसिस होता है तो उसको भी 1 लाख रुपए देने का। फिर उसने फैक्ट्री ओनर ने बोला कि चलो पैरालिसिस हो गया समझ में आया, लेकिन अगर उसका एक उंगली कट गया या सिर्फ उसका 4 उंगली कट गया या पैर का एक उंगली कट गया तो क्या करने का? तो बोला कि इससे तेरा काम में कितना फर्क पड़ता है? बोलता है कि अगर तेरा काम उठाने का है तो 10 उंगली वाला आदमी चाहिए, 4 उंगली वाला आदमी नहीं चाहिए। तो फिर वो बोला कि इस मतलब अपने को इसका डिसेबिलिटी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। नाउ ये हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, इससे क्या हो रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी लिखते जा रही है कि हम लोग क्या क्या कवरेज दे रहे हैं। तो पहला कवरेज क्या हो गया, सेक्शन 1 में डेथ, तो डेथ में आपको कितना मिलेगा, 100%। दूसरा कवरेज हो गया लॉस ऑफ 2 लिम्स और 1 आई, एनी वन, मतलब कुल मिला के 2 लिम्स होगा या फिर 1 लिम्ब 1 आई होगा तो भी 100% मिलेगा। फिर ओनली 1 लिम्ब 1 आई होगा तो 50% मिलेगा। और तीसरा आइटम है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, मतलब जैसे मैंने बोला क्या बोला था मैंने, उसको मतलब वो कुछ काम नहीं कर सकते, इज नॉट एबल टू वर्क। हाँ, पैरालिसिस हो गया तो भी उसको 100%। हाँ, एंड नेक्स्ट परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, तो उसका अगर हम लोगों ने परसेंटेज फिक्स किया कि 20% इज डिसेबल, तो 1 लाख का 20% उसको मिलेगा। तो वो डॉक्टर ने पूरा लिस्ट बना लिया 1 से लेके 75%। तो ये हमारा पीए पॉलिसी में प्रीमियम फिक्स हो गया, बेनिफिट फिक्स हो गया। नाउ अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैं जाके सब मेरे दोस्तों को बोल दिया कि भाई अभी हमारे को 15 रुपए 20 रुपए देने पे अपने को 1 लाख का सम इंश्योर्ड कवर मिलेगा। तो सब लोग खुश हो गए कि हाँ हाँ हम लोग करेंगे। लेकिन एक मेरा जो फ्रेंड था जो ऑफिस में काम करता था, वो बोला कि यार मेरे पास तो है ना, मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ, तुम लोग के जैसा मेरा हाई रिस्क जॉब नहीं है, तो मेरे को क्यों 20 रुपए देने का, मेरे वहां तो कोई मरता भी नहीं है ऑफिस में, तो मैं क्यों 20 रुपए दूं? तो मैं बोला कि हाँ वो भी बात सही है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा रिस्क है ना, वहां पे एक फर्नेस में काम करता है आदमी, या जो हाई टेंशन वायर में काम करता है, उसका रिस्क ज्यादा है, वो भी 20 रुपए देगा। ये तो गलत है ना, हम लोग को इसका बाइफरकेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैं गया इंश्योरेंस कंपनी का, उस तीनों को लेके हम लोग तीनों गए। तो वो तो जो हाई रिस्क वाला तो आ ही नहीं रहा था, फिर भी मैं उसको बोला तू चल, नहीं तो तेरे को पॉलिसी मिलेगा नहीं। तो वो भी आया। फिर इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि देखिए ये ऑफिस में काम करता है, इसका कोई रिस्क ही नहीं है। तो बोला कि कोई आदमी मरता नहीं क्या ऑफिस में? बोला है, लेकिन उसका बहुत नेग्लिजिबल रिस्क है। तो वो बोलता है मैं 20 रुपए नहीं दूंगा। मैं तेरे को 1 लाख आदमी बोला था, लेकिन इसमें से 20,000 लोग ये है, इन लोग मना कर रहे हैं कि हम लोग 20 रुपए नहीं देंगे। और ये आदमी है जिसका जो ऐसा रिस्की काम करता है कि इधर ही जो 3-4 लोग मरते हैं ना, ये इन लोग के उसमें ही मरता है। तो ये भी 20 रुपए देगा, ये भी 20 रुपए देगा, मैं भी 20 रुपए देगा, तो तुम लोग क्यों करेंगे ऐसे कवर? इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी बोलता है ठीक है, इसको हम लोग 40 बोलेंगे, मेरे को 20 बोलेंगे और उसको 15 बोलेंगे। इससे क्या हो गया कि मेजर मेजर इंटरव्यू 20 वाले में मैक्सिमम लोग हो गए 60% 70%। उसका बेसिक प्रीमियम, उसका जैसे नंबर ऑफ पर्सन रहेगा, नंबर ऑफ कैजुअलिटी उसके उसके मैच हो रहा है। यहाँ पे कैजुअलिटी कम है तो वहां पे प्रीमियम कर दिया, यहाँ पे कैजुअलिटी ज्यादा है तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा दिया। तो हमारा जो रिस्क ग्रुप डिसाइड किया है उसमें 3 टाइप के रिस्क ग्रुप है, एक हाई ग्रुप रिस्क है और एक मीडियम है और एक लो रिस्क है। तो ये जो है ना, ये पीए में एप्लीकेबल किया। वैसे ही अगर हम लोग इसको दूसरी तरह से सोचेंगे तो मेडिक्लेम में भी एक यंग लोग है जो लो रिस्क ग्रुप है, मिडिल एज वाले जो मिडल में है, और एक एजेड लोग है, उन लोग हाई रिस्क ग्रुप में है। नाउ यू सी व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रीमियम कॉस्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी यही सोचती है कि ये बराबर बोल रहा है कि अगर वो फैक्ट्री वो फर्नेस ब्लास्ट में काम कर रहा है तो उसको 40 रुपए देंगे, तो 20 रुपए बोलेंगे तो उसको फायदा ही मिलेगा, और वो सब लोग लेंगे, वो सारे 20 रुपए में लेंगे। और इसको अगर मैं 20 रुपए बोलता हूँ ऑफिस वाले को, वो सोचेगा मैं क्यों लूँ, लेने का ही क्यों। अगर उसको मैं बोलूंगा नहीं नहीं तू ले, 15 रुपए में ले, कल को तेरे को दूसरी जगह मिलेगा, तेरे को शायद फर्नेस ब्लास्ट में काम करने को जाना पड़े, तेरा ऑफिस बंद हुआ, तब तू क्या करेगा, कंटिन्यूस कवर मिलेगा, उधर हम लोग तेरे को एडजस्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग मेडिक्लेम में भी हम लोग जो हमेशा लड़ते हैं ना कि क्यों तुम्हारा प्रीमियम बढ़ते रहता है, कौन से बेसिस पे बढ़ते रहते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है उसका रिस्क प्रोन
प्रोन टू रिस्क एंड प्रोन टू क्लेम। मेरे कंडीशन में क्या है कि मेरे को अगर 20 रुपया बोलेगा तो ठीक है, मेरे को 30 बोलेगा तो मैं बोलूंगा जान दे यार, इससे अच्छा तो मैं जमा करता हूँ पैसा, मेरे को क्या मालूम, मेरा एक्सीडेंट होगा तो होगा, नहीं होगा तो मेरा पूरा पैसा वेस्ट होगा। तो मेरे को ऐसा इंसेंटिव इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए कि मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। इसको ऐसा इंसेंटिव होना चाहिए कि यार नहीं आ रहा तो भी चलो सेफ्टी के लिए मैं सेफ्टी नेट के लिए 15 रुपए दे के भी ले लूँ, और ये तो मालूम है लेने ही वाला है, मतलब इसको पहले समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग का रिस्क ग्रुप इस तरह से डिफाइन हुआ पीए में, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग फैक्ट्री हम लोग मैं माई सेल्फ और इंश्योरेंस कंपनी और मेरा डॉक्टर और मेरा फैक्ट्री ओनर डिस्कस कर रहे थे, तो जब कवरेज डिस्कस कर रहे थे उसमें एक्सक्लूजन भी डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सक्लूजन में क्या था कि इसको पूछा फैक्ट्री वाले को कि तू किसको काम पे रखता है, तो बोलते जिसको काम आता है उसको रखता है। तो बोलते है अगर उसका अनसाउंड माइंड है, अगर भी दिमाग से उसका प्रॉब्लम है तो उसको तो रखेगा काम पे, तो बोलते हैं नहीं। बोले क्यों? क्योंकि वो साला खुद तो गिरे मरेगा, साथ में 4 लोगों को और मरेगा। तो अनसाउंड माइंड वाला एक्सक्लूजन में इंश्योरेंस कंपनी ने डाल दिया। फिर बोला कि अगर कोई सुसाइड करता है तो उधर सुसाइड करने वाले को तो कोई भी कंसिडर नहीं करता है, तो सुसाइड भी अपना एक्सक्लूजन में चला गया। फिर एक आर्म फोर्सेस के बारे में है कि हम लोग एक्सक्लूजन करते पीएम में, क्योंकि उनका काम ही है कि देश की सरहद की रक्षा करना, तो उसमें गोलीबारी मरना एकदम हाई रिस्क जोन है, तो उसको हम लोग कवर करना एक अलग तरह से पीए पॉलिसी बना के हम लोग कर रहे हैं। बट इन जनरल उस वक्त या अभी भी हम लोग आर्म फोर्सेस एक्सक्लूजन में रखा है। सेम फॉर पायलट्स, अगर एरोप्लेन में चलाते हैं और उसका रेगुलर काम हो एकदम हाई रिस्क जोन पे, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं। वॉर एंड न्यूक्लियर, ये वॉर एंड न्यूक्लियर आप देखोगे ना, ईच एंड एवरी मेडिक्लेम पॉलिसी और जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूजन है, एक्सेप्ट मरीन। आई थिंक एवरीवेयर इट इज एक्सक्लूडेड। क्यों एक्सक्लूजन है? क्योंकि अगर हम लोग इसको कंसिडर करेंगे तो अगर ऐसा कोई भी छोटा भी इंसिडेंट होता है ना, इट विल वाइप आउट द नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, नंबर ऑफ असेट्स विल बी वाइप्ड आउट। और उस वाइप आउट को अगर हम लोग कवरेज देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी विल बिकम बैंकरप्ट। सो टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट, उसमें इतना हाई रिस्क है, हम लोग अगर उसमें कवरेज देने भी जाएंगे तो हम लोग को अपना टेररिज्म का हम लोग ने अलग से पुल बनाया, हम लोग को उसको देना ही नहीं था कवर। लेकिन टेररिज्म इज लाइक आज की तारीख में इतना कॉम्प्लिकेशंस हो गया कि हम लोग उसका कवरेज मना करेंगे तो कोई पॉलिसी नहीं लेगा, तो उसके लिए हमने सेपरेट पुल बनाया, क्योंकि अभी उसका क्वांटिटी कम है,